Good morning, students. Welcome to online class for class 2nd, subject English first. So now open your book and open chapter number 11, Jane and the Gems. In last video, I will already explain this chapter. So in this video, we will do this exercise portion. Now open page number 99. Okay. So understanding the story. So first is chimps and humans are similar in many ways. Chimps और human काफी similar है, मिलजुले जुलते हैं एक दूसरे से. Mark this statement as true, T और not true and T. Okay, जो statement हमारे correct होंगे वहां पे आप T write कीजिए in front of them, and जो statement हमारे false होंगे उनके आगे anti. It means not true. So first statement is chimps and humans both can make tools. Chimps भी tools बना सकते हैं and humans भी. Is it true or not true? Yes, this one is true. So you can write T in front of them. Okay, next is chimps and humans both only eat plants. Chimps भी plant खाते हैं और humans भी सिर्फ plants खाते हैं. No, this is false. Okay, so it means not true. So you can write anti. It means not true. Third one is chimps laugh and play just like humans. Chimp जो होते हैं हंसते हैं बिल्कुल इंसानों जैसे. This statement is also true. So you can write in front of them T. It means true. Next is chimps never get angry or scared. Chimp कभी गुस्सा नहीं करते ना ही डरते. This statement is not true. So you can write NT. Next statement is human fight with each other. Human जो होती है एक दूसरे से fight करते हैं, but chimps never fight. लेकिन chimps जो होती है वो कभी fight नहीं करते. This statement is also not true. So you can write NT. It means not true. Next is answer these questions. So student, I will send you PDF of question answers in class. Okay. Now turn the page. Next is page number 100. So what do these lines tell us about Jane Goodall? ये lines Jane Goodall के बारे में क्या बताते हैं? Pick the most suitable answer from the box. यहाँ पे answer given है. आपको जो सबसे suitable title हो आपको यहाँ से वो pick करना है. So first is as a child she loved watching animals for hours. जब वो छोटी थी जेन तब उसे एनिमल्स देखना घंटों तक पसंद था. तो जब सबसे मोस्ट सुइटेबल टाइटल है इसमें सो लव्ड एनिमल बिकॉज शी लव्ड एनिमल्स दैट्स व्हाई शी इज वाचिंग फॉर मेनी आवर्स. सो फर्स्ट आंसर इज लव्ड एनिमल्स. नेक्स्ट इज एवरी मॉर्निंग जेन वॉक इनटू द फॉरेस्ट क्लाइम टू पीक एंड लुक फॉर जेम्स. जिम जो है एवरी मॉर्निंग में उठ जाया करती थी, अर्ली मॉर्निंग चली जाया करती थी फॉरेस्ट में, क्लाइम कर दिया क्लाइमिंग चढ़ना होता है, पीक पे चढ़कर बैठ जाया करती थी और जिम्स को यूं ही देखती रहती थी अर्ली मॉर्निंग में. इट मीन्स जिम्स इज वेरी वर्क हार्ड. सो वर्क हार्ड. नेक्स्ट इज जेन लर्न मैनी न्यू थिंग्स अबाउट जिम. जेन ने काफी नई नई चीज जानी जिम्स के बारे में और वो और जानना चाहती थी. It means wanted to learn more. So you can write wanted to learn more. Next is D. Jane asked people to help save the chimps and the forest. Jane ने लोगों से कहा कि सेव करो चिम्स को और फॉरेस्ट को बचाओ ज्यादा से ज्यादा. It means she was kind and caring. So you can write was kind and caring. This question answer is complete. Next is B. ग्रामर यूजेज. सो जेम्स लव एनिमल एज मच शी लव ह्यूमन बीइंग. जेम्स को एनिमल्स पसंद थे जितने ज्यादा उसे ह्यूमंस पसंद थे उससे ज्यादा इंसानों से ज्यादा वो एनिमल्स जेम्स को पसंद करती थी. अंडरलाइन सेंटेंस दैट शो अस हाउ लव हर फॉर एनिमल्स. ओके, सो ग्रामर एंड यूजेज. We learn that the past tense from the most verb in form by adding D और ED. जो past tense में होती है सेंटेंस में या तो D राइट किया जाता है या फिर ED. अगर E ऑलरेडी राइट हो वहां में तो हम D राइट करते हैं, अदरवाइज हम E और D दोनों राइट करते हैं. सो दीज वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब. इन्हें रेगुलर वर्ब्स बोलती है जहां हम E और D पास्ट टेंस में राइट करती हैं. लिव लिव्ड, वांट ED नहीं है ना, यहाँ पे लिव में E था तो हमने सिर्फ D ऐड किया है. यहाँ पे ED नहीं E नहीं है तो हमने ED दोनों ऐड किए. यहाँ प्ले ना E नहीं है ना, सो ED प्लेड. सो कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट. ब्रैकेट में अगर E है तो हम ओनली D राइट करेंगे, अदरवाइज हम E और D दोनों राइट करेंगे. सो माई ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पे लिव है, लिव में E ऑलरेडी है तो यहाँ पे सिर्फ D राइट होना है. सी
नेक्स्ट इज ग्रैंडपा डैश एज अ साइंटिस्ट। ग्रैंडपा वर्क करते हैं, यहाँ पे ई नहीं है सो ईडी बोथ राइट करेंगे। वर्क एज अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट के रूप में काम करते हैं, वैज्ञानिक के रूप में। ग्रैंडपा डैश ऑल द चिल्ड्रन इन देयर नेबरहुड। लव है तो यहाँ ई ऑलरेडी राइट है तो हम सिर्फ डी राइट करेंगे, तो लव्ड। नेक्स्ट है शी डैश स्पेशल डिशेस एंड डैश बर्थडे केक फॉर देम। उसने कुक किया स्पेशल खाना और बेक किया केक को। सो कुक है तो हमने ईडी राइट किया, बेक में ई ऑलरेडी राइट है तो हम डी राइट करेंगे, बेक्ड। नेक्स्ट इज बोथ ऑफ देम डैश इन द पार्क नियर बाय एवरी मॉर्निंग। दोनों मॉर्निंग में जाते थे पार्क में वॉक पे, तो वॉक में ई राइट है तो हम ईडी दोनों राइट करेंगे, वॉकड। दे ऑल्सो डैश द पार्क कीपर टू क्लीन द पार्क। वो पार्क कीपर की हेल्प करते थे पार्क क्लीन करने में, तो हेल्प में ई राइट नहीं है तो हम ई और डी दोनों राइट करेंगे, हेल्प इट। नेक्स्ट इज नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंसेस हैं, दिस इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। जहाँ पे ई और डी राइट होता है सिंपली वो हमारे रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। जहाँ ई और डी ऐड नहीं होता वहां पे हमारे सेकेंड फॉर्म में पास्ट में कुछ डिफरेंट चेंजेस होते हैं तो वो हमारे इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। लाइक जेन वेंट टू अफ्रीका। ओके, गो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट में हम गो को वेंट कर देते हैं। ओके, सो गो का हमारा वेंट हो गया। जेन रोट इन हर डायरी एवरी डे, वो लिखती थी तो फर्स्ट फॉर्म हमारी राइट होती है, सेकेंड फॉर्म हमारी रोट हो गई। नेक्स्ट जिम मेड टूल्स, फर्स्ट फॉर्म मेक होती है, सेकेंड फॉर्म पास्ट में हमारी मेड यूज होती है तो मेड टूल्स औजार बनाते थे। सो सम वर्ड डू नॉट टेक डी और ईडी बट चेंज दियर फॉर्म कंप्लीटली द पास्ट टेंस। कुछ वर्ड चेंज नहीं होते, वर्ड्स ईडी ऐड नहीं होता उसमें, लेकिन वो फिर भी पास्ट टेंस में बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, वो हमारे कहलाते हैं इरेगुलर वर्ब्स। लाइक गो की हमारी वेंट हो जाती है पास्ट में, राइट की रोट, मेक की मेड। स्टडी दिस वर्ब एंड दियर पास्ट टेंस फॉर्म। आपको ये हेल्प करेंगे एक्सरसाइज फिल करने में। गिव की गिव, नो की न्यू, ड्रिंक की ड्रैंक, टीच की टॉट, फॉल की फैल, थिंक की थॉट, मीट की मैट, फाइंड की फाउंड, बिगिन की बिगेन, सी की सॉ, ईट की एट, वेक की वो। तो ये हमारे फर्स्ट फॉर्म में जो वर्ड्स गिवन होंगे उन्हें हम पास्ट में करने के लिए इस तरह से चेंज करेंगे। So do the exercise portion and page number is 102. Complete the answers to these questions with the correct past tense form of the verb in the color. आपको सिंपली ऑलरेडी आंसर पूरा राइट है बट आपको सिर्फ इसको पास्ट टेंस में चेंज करना है मेन वर्ड से। लाइक व्हाट डिड यू, जो हमारा हाईलाइट है, हाईलाइट हुआ हुआ है ऑलरेडी, उसको हमें पास्ट टेंस में चेंज करना है। व्हेन डिड यू गो टू बेड लास्ट नाइट, आप बेड पे कब गए थे कल रात। गो के से पास्ट में बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आप रिटर्न करके भी चेक कर सकते हैं। गो की हमारी वेंट हो जाएगी। ओके, सो गो का वेंट हो गया, बाकी एज इट इज आई वेंट टू बेड लास्ट 8 o'clock, वो टाइम आंसर किया उन्होंने कब गए थे। व्हेन डिड यू वेक अप एट टुडे, वेक की क्या हो जाएगी पास्ट में। मैं ऑलरेडी आपको इस पेजेस पे दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हमने किस तरह से इसको कंप्लीट किया है। वेक है, वेक की यहाँ राइट, वेक की यहाँ राइट है, वेक की है वोक। तो इस तरह से हमने ये, आप पीछे से भी देख के फिल कर सकती हैं लास्ट पेजेस से। सो वेक की वोक हो जाएगी, ड्रिंक की ड्रैंक हो जाएगी, एट की एट हो जाएगी, मीट की मैट हो जाएगी, टीच की टॉट हो जाएगी। ओके, तो सिंपली हम इसको कर सकते हैं। हम एक बार कंप्लीट कर रीड कर लेते हैं। व्हेन डिड यू वेक अप टुडे, आज आप कब उठे। आई वोक अप एट 6:30 AM, बिकॉज ये उठ चुके हैं मॉर्निंग में तो ये पास्ट है, सो वेक की वोक हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट डिड यू ड्रिंक इन द मॉर्निंग, तुमने मॉर्निंग में क्या पिया था, तो पी चुके हैं ना ये, सो पास्ट हो जाएगा। सो ड्रिंक की ड्रैंक, आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैंने एक ग्लास दूध पिया था। व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो ब्रेकफास्ट में खा चुके हैं ना, सो पास्ट है। सो आई एट 2 इडलीज फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट में 2 इडली खाई थी, खा चुके हैं ना, तो यहाँ ईट की 8 हो जाएगी। वो डिड यू मीट ऑन द योर वे टू स्कूल फॉर दिस मॉर्निंग, आपको स्कूल मॉर्निंग के टाइम पे कौन मिला था। सो आई मेट माई न्यू नेबर्स, मुझे न्यू नेबर्स मिले थे, मिल चुके हैं ना, सो मीट की मैट। वट डिड योर टीचर टीच यू इन द फर्स्ट पीरियड, आपकी टीचर फर्स्ट पीरियड में आपको क्या पढ़ाती है। सो अवर टीचर टॉट, पढ़ा चुकी है ना, पढ़ाती है ना, अवर टीचर टॉट अस इंग्लिश इन फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड में हमारे टीचर ने हमें इंग्लिश पढ़ाई थी। सो ये भी हो गया। नेक्स्ट है साउंड ऑफ डिफरेंट एनिमल्स,
अब इन एनिमल्स की क्या क्या साउंड होती है उसे राइट करेंगे. लाइक लिसन टू डिफरेंट साउंड मेड बाय एनिमल्स, देन कॉपी द साउंड योरसेल्फ. फिर आपको करना है. सो कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड्स. फर्स्ट इज देयर वॉज नो पावर लास्ट नाइट. रात में लाइट नहीं होती. वी कुड हेयर द डैश ऑफ द क्रिकेट्स. रात में जब लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है, तब उस टाइम एक अजीब सी कीड़े की आवाज आती है ना. तो वो साउंड किस टाइप की होती है? साउंड चिप या क्रॉक? वो साउंड होती है हमारी क्रॉक की. तो हम यहाँ राइट कर लेंगे CROAK, क्रॉक. वो क्रिकेट होती है तो उनके पास क्रॉक होती है. नेक्स्ट है कैन यू हियर द आउल्स इन द डिस्टेंस. आउल की क्या होती है? होट होती है. आउल की होट होट आवाज होती है ना. सो हम यहाँ राइट करेंगे होट. नेक्स्ट पेज नंबर 103. अ हाइना डैश लाइक अ ह्यूमन लाफिंग. हाइना की आवाज जो होती है ह्यूमन लाफिंग की होती है. क्या होती है? लाफ, यानी कि हंसी. सो LAUGH लाफ. नेक्स्ट लिसन टू द फ्रॉग्स डैश बाय द पुडल ऑफ वाटर. आपको फ्रॉग्स की आवाज सुनने को मिल जाती है पुडल वाटर में, यानी गंदे पानी में कीड़े फ्रॉग्स पैदा हो जाती हैं. तो कैसी आवाज आती है उसमें? हम्स की. सो HUMS हम्स. नेक्स्ट है दे कुड हेयर द डैश ऑफ द चिम्स बट कुड नॉट सी देम. उसने एक आवाज सुनी थी किसकी? चिम्स की. तो चिम्स की आवाज कैसे होती है? पैंटहुड कॉल या लाफ? सो द आंसर इज पैंटहुड कॉल. सो पैंटहुड कॉल्स. ओके. So students, your exercise portion is done. You can fill this all exercise portion in your book also. So thank you and have a nice day.